Student, this is Miss Tina, your science teacher. I hope you all have finished your chapter number one, that is crop production and management. So today we'll be starting with our next chapter, that is chapter number two, microorganism, friend and foe. So here in this chapter, we are going to study about that what are microorganisms and how many types of microorganisms are there, and how these microorganisms are useful for us and are considered as our friend, and how these microorganisms are harmful for us and they are considered as our foe. So what is foe? Foe is basically enemy. So why some microorganisms are considered as our enemy? So these are the things that we are going to study in the chapter. So let's start with our first topic, that is the what is microorganism. So you have seen several kinds of plants and animals. So you have seen many kinds of plants and animals, but there are certain living organisms around us which we normally cannot see. So what is microorganism? To microorganism are these organisms which we cannot see with our naked eyes. मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जिन्हें आप ऐसे ही अपनी आइज से नहीं देख सकते हैं. आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमेशा क्या चाहिए होगा? माइक्रोस्कोप चाहिए होगा. हाँ, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिसे कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमेशा आपको क्या होगा? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी. विदाउट माइक्रोस्कोप यू कैन नॉट सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो का मीनिंग ही है small, means very small living creature. Organism means living creature, micro means very small. So very small living creature are known as the microorganism, and as they are very small, so they cannot be seen through the naked eyes. It can only be seen through the microscope. So here is an example given in this first paragraph, that आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली क्या होता है, अगर ब्रेड को आप ऐसे रख देते हैं कहीं किसी मॉइस्ट प्लेस पे, या जब मॉइस्ट अगर सीज़न है तो ब्रेड क्या होता है, इट गेट्स स्पॉइल्ड एंड सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पेचेस. आपने देखा होगा कि जो ब्रेड पे है वो ग्रेइश और वाइश कलर के जो हैं वो पैचेस उस पर आ जाते हैं. तो इन पैचेस को अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि इन पैचेस पे क्या होते हैं, देर आर टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. सो दीज black rounded structures. So here is this question being asked यहाँ पे कि what are these structures and where do these come from? So what are these structures? So these structures are known as sporangium. So what are these structure? Sporangium is the name given for these structure. So how these structures generally look like? So when you will see these fungus on the bread mold, is basically a fungus that you will see on the bread after a certain point of time when you will keep in the moist places. So these kind of structure जो है you will see in the microscope. So here ये this structure, this rounded structure is known as the sporangium. ठीक है. And where do these come from? So where does these basically from where does this mold or the bread mold जो है this comes from? So these generally are present in the air. So whenever these spores which is present in this sporangium, they get the favorable condition, they germinate upon this. So whenever they comes in the contact of this wet bread, so they germinate on them. So here is this activity given for you all, that collects a moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker
under a microscope, what do you see? Then the activity 2.2 is given here. Take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide and observe through a microscope. So जब आप ये दोनों एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो आपने इन एक्टिविटीज़ में क्या किया है कि यहाँ पे आपने सॉइल लिया है, यहाँ पे आपने वाटर लिया है. तो बेसिकली जब इन एक्टिविटीज़ में आप जब इनसे स्लाइड बनाएंगे तो आपको स्लाइड में क्या दिखेंगे, यू विल फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड. तो उन स्लाइड में आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे उस स्लाइड को तो आपको क्या दिखेगा कि ये सॉइल और पानी वाले सॉल्यूशन में ये सॉइल सॉल्यूशन में और पानी में आपको क्या होंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे. तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ज़रूरी नहीं कि सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बट देयर विल बी सम ऑर्गेनिज्म जो कि क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये शो करती है कि वाटर एंड सॉइल जो है दे आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स. तो वाटर और सॉइल में क्या होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ organisms present. These microorganisms are generally present here in this water and soil, though not all of them fall into the category of microbes. But वही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे सॉइल या वाटर में, बट सारे जो है वो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आएंगे. These microorganism or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. इन्होंने यही कहा है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इतने छोटे होते हैं कि साइज़ में कि आप उनको अनएडेड आई मीन्स कि बिना माइक्रोस्कोप या बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के आप उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते हैं. सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन द ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है, जैसे कि आपने ब्रेड पे जो फंगस ग्रो कर रही थी उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाएंगे. आप उन बाकी माइक्रोब्स को सिर्फ एक ब्रेड मोल्ड ही है जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. सो वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल एंड दे कैन नॉट बी सीन विद दी unaided eyes. So microorganisms are generally classified into 4 major groups. So what are these 4 major groups in which the microorganisms are generally classified? These are the bacteria, fungi, protozoa and algae. So these are the 4 groups in which microorganisms are generally being classified. So, and some of these common microorganisms are shown in the figure 2.1 and 2.4. So this figure 2.1 and 2.4 are in your next page. Here is the figure 2.1. So in this figure 2.1 you can see that the diagram of bacteria is being shown here. So आप ये देख सकते हैं कि ये जो दो डायग्राम है ये बैक्टीरिया दिखाए हुए हैं. अब बैक्टीरिया भी डिफरेंट शेप के होते हैं. अभी इस वाले अगर आप ये वाला बैक्टीरिया देखेंगे, ये वाला बैक्टीरिया जो है वो आप देखेंगे कि रोड शेप्ड है. एंड दिस बैक्टीरिया दिस इज जनरली स्पायरल इन शेप. सो बैक्टीरियाज दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स. देन इन दिस फिगर 2.2, in this figure 2.2 you can see as you have seen there are 4 categories in which the microorganism has been classified. The first category was the bacteria, then second category is the algae. So here the example of the algae is given here. So the first example is the Spirogyra. You all have studied about this Spirogyra in the class 7th as well in the reproduction chapter. Okay, then the second example of the algae is the Chlamydomonas. Then the third category of the microorganism is protozoans. प्रोटोजोन्स में भी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, अमीबा का एग्जाम्पल एंड पैरामीशियम का एग्जाम्पल. सो ये सारे क्या हैं बच्चों, ये सारे क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. फिर आपकी कौन सी कैटेगरी रह गई, अभी तक हमने 3 कैटेगरीज देख रही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. कौन कौन सी देखी हमने, बैक्टीरिया देखा है, एल्गी देखी है एंड प्रोटोजोआ देखा है. अब फोर्थ जो कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, फोर्थ कैटेगरी है आपकी fungi. Fungi में we have already talked about the bread mold. See here in this bread mold, this blob-like structure, this rounded this blob-like structure, this rounded structure is known as the sporangium.
We have already talked about it in the starting of the chapter. And the here you can see in this rounded structure there is some black dots you can see. So these black dots are nothing but these are the spores, and these are the spores which germinate into this fungus on the so when these spores germinate into the fungus, whenever they come into the surface which is like most moist, and so they germinate on such kind of surfaces such as like we have studied about the bread mold. सो ब्रेड मोल्ड जब वेट कंडीशंस में होगी और हम उसको क्या रखेंगे, किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ के टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तभी जो होगा उसमें ये आपको ये फंगस देखने को मिलेगी. देन द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द फंजा इज गिवन हियर the penicillium, then aspergillus. So these are all the example of the माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके जो है एग्जाम्पल जो है वो पूछे जाते हैं. ठीक है, सो हम ये फिगर 2.1 to 2.4 जो है हम देख चुके हैं. लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ वायरसेस. सी यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट वायरसेस. अभी तो एक वायरस जो है रिसेंटली काफ़ी चर्चा में है, आप सुनते ही हैं रोज़ उसके बारे में, कोरोना कोरोना कोरोना. ठीक है, सो what are these viruses actually? They are also very small. So why they are not considered as microscopic organisms? So why do we not consider these organism as the microscopic organism? Because why do not we consider वायरसेस जो हैं, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन. वो अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. वो तभी रिप्रोड्यूस करेंगे ओनली व्हेन दे आर इनसाइड दी होस्ट ऑर्गेनिज्म. तो वो कब रिप्रोड्यूस करते हैं, जब वो क्या होता है किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे. सपोज जैसे कि अभी वायरस हमारे अंदर एंटर करेगा, तभी वो डिवाइड कर पाएगा और अपने जैसे और वायरसेस बना पाएगा. अदरवाइज़ वो अपने आप जो है अपने वायरसेस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता. इसलिए जो है वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं डाला जाता. ठीक है, और वायरसेस के जो होस्ट जो हैं, इट कैन बी एनीथिंग लाइक बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी अ होस्ट फॉर द वायरस. मतलब वो बैक्टीरिया के अंदर भी एंटर कर सकता है वायरस, जो है प्लांट में भी एंटर कर सकता है और एनिमल में भी एंटर कर सकता है. इन तीन में से किसी में ही एंटर करने के बाद ही वो क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा. ठीक है, देन आप देखेंगे इन फिगर 2.5 सम वायरसेस आर ऑल्सो शोन हियर. सो लेट्स move to the figure 2.5. Here in this figure 2.5 you can see the diagram of some viruses is given. So this is one virus and this is one virus. The name is not given here, so we don't need to remember the name as it is not required here. So let's move to the text again. As you can see here दैट दी एज मतलब वायरस है तो क्या करता है, वायरस बहुत सारे डिजीज़ जो है वो कॉज करता है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इवन जो हमें कोल्ड होता है ना, तो कोल्ड जो भी होता है, कोल्ड किसकी वजह से होता है, वायरस से होता है. देन इन्फ्लुएंजा and most of the coughs, these are all caused by the viruses. And some other serious diseases like polio and chicken pox, they are also caused by the viruses. वो आपने सुना होगा ना कि वायरल फीवर हो गया. क्या मतलब होता है उसका, वायरल फीवर हो गया मतलब कि वो वायरस की वजह से हुआ है. ठीक है, then there are certain disease which is caused by the bacteria such as this dysentery and malaria. So these are the then there are certain bacteria disease which is caused by the bacteria. जैसे typhoid and tuberculosis is the disease which is caused by the bacteria. Then the dysentery and malaria are caused by the protozoa. So these are the diseases. You have to keep the name of these diseases in your mind because these are generally being asked in your exam. So you have learned about some of these microorganisms in class 6th and 7th. So you must have been learning about this microorganism since your class 6th and 7th also. So where do these microorganisms live? So
as we have already seen that the microorganisms that we can found some microorganism in the soil and water, but they live in certain other places as well. So microorganism may be single cell like bacteria, some algae and प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं, ओनली सिंगल सेल ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल है, बैक्टीरिया इज देयर, सम एल्गी इज देयर एंड प्रोटोजोआ इज देयर। फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे कि मैनी एल्गी एंड फंजाई। अभी एल्गी हमने ऊपर देखा कि एक स्पायरोगायरा एल्गी था, तो जो स्पायरोगायरा एल्गी था वो मल्टी सेलुलर एल्गी था। क्लेमाइडोमोनास जो था इट वाज दी यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल एल्गी था। एंड फंजाई में भी आपने देखोगे कि देयर इज़ ओनली वन फंजाई विच इज़ यूनिसेलुलर, दैट इज़ यीस्ट। बाकी जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। So microorganism they live in all types of environment. So what kind of environment they live, ranging from the ice cold climate to the hot spring. तो मतलब अगर आप बहुत ठंडी जगह पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे ही हॉट स्प्रिंग जो गर्म पानी के झरने होते हैं ना, वहाँ पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, डेजर्ट में भी मिलेंगे, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड इट इन दी ऑन दी मार्शी लैंड्स। मार्शी लैंड्स मीन्स जो दलदल वाली जगह होती है, वहाँ पे भी आपको क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड दी बॉडीज़ ऑफ दी एनिमल्स। ठीक है, हमारे अंदर भी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हमारी बॉडीज़ में भी रहते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे ऑल्सो ग्रोन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो किसी की बॉडी में नहीं रहते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते, दे लिव ऑन देयर ओन। देन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम लोग को कैसे अफेक्ट करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल for us in many ways whereas some others are harmful and causes the disease। तो आगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि जैसे कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, हमारे बहुत काम आते हैं। देन देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल फॉर अस, मतलब जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो ये चीज़ें हम आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम यहीं पे ये वीडियो एंड करते हैं। Thank you class 8th and B।